Hello students, myself Rakesh Misra. As you all know, our important series of revision is going on. In that series, here I have bring you the top most question from 10-year important boards, and that may probably ask in upcoming examination. So you should focus on the important lesson. The important lesson is the heredity and evolution. It is very important lesson, and most of the question that may confuse you almost asked from this lesson. As you all know, from session 2020-21, the matter of evolution is no more in our syllabus. So this is to remind you that only hereditary and their topics is necessary, and it also necessary to read you. So you should focus on the topic of heredity only. And in this series, you will learn the very short answer type question, and long answer type question. This is part 2 video. In part 1, you have learned the question number 1 to 4. While in this video, we will begin the question number 5 to 5 onward. It means the all question that is maybe 1 marks, 2 marks or 5 marks may probably ask in the examination, because this was selected from the previous year question paper. So you should focus on each and every question whether I have revised you. So let me begin the question number 5 in order to revise them thoroughly. You should have at least pen paper in order to note down the probable answer. Along with this video lecture, you will get the PDF in which the question that I have revised you will get apart from the question, you will get the answer from the video and the question in the PDF. So you should focus on the answer from video and note down the important concept that you have learned. So without delay timing, let back over the question number 5 and revise them thoroughly. Now the question number 5. Last question of previous video was question number 4, that is flash over your screen. Define variation in relation to species, and the definition regarding variation was over in previous video lecture. This is the second video of revision of short and long answer type question. In this video you will learn the question number 5. The question number 5 is distinguish between acquired traits and inherited traits by giving one example of each. Why are traits acquired during the lifetime of an individual not inherited? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब इसमें एक्वायर्ड ट्रेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे और इनहेरिटेड ट्रेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ये कई बार बताया भी जा चुका है. आपको फोकस आउट करना है सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट पे, ठीक है. चलो आते हैं, इसको मैं बता दूं एक्वायर्ड ट्रेट्स को डिफाइन कैसे करना है. थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं यहाँ पे एक्वायर्ड ट्रेट्स को यहाँ पे आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ. एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है. ट्रेट्स that gained by living organisms in their lifespan, called acquired traits, ठीक है. So traits are basically two types, the acquired traits and inherited traits. Traits that gained by लगा लेना, by living organisms in their lifespan called acquired traits, ठीक है. अब आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड लिख लेते हैं. इट नेवर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ये पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होता है, ठीक है. यानी कि अगर कोई पेरेंट्स ये ट्रेट्स पॉज करता है, जैसे इसके पास कोई ट्रेट्स है
जो बच्चे के पास नहीं है, ठीक है, तो बोलेंगे ये ट्रेड्स जो है एक्वायर्ड ट्रेड्स है। फॉर एग्जांपल इसकी अपनी इंटेलिजेंस, ठीक है, इसकी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, ये एक्वायर्ड ट्रेड्स होती है, इनेटेड ट्रेड्स नहीं होती, वो पढ़ लिख के आती है, ठीक है। तो इसका रिलेशन जीन से नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफ़र पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं होता है, ठीक है। अब ये पढ़ लिख के अगर इसका बेटा डॉक्टर बन गया और ये डॉक्टर नहीं था, तो इसके लिए बोलेंगे कि ये ऐसा नहीं था, डॉक्टर नहीं था, इसका बेटा कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा, नहीं, ये डॉक्टर बन जाएगा। रीज़न क्या है कि डॉक्टर बनना या इंटेलिजेंसी, प्रोफेशन, आर्ट, स्किल, ये सब जो है, ये सब जो है एक्वायर्ड ट्रेड्स होता है, ठीक है। कोई अच्छा तैरना जानता है तो उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे भी अच्छे तैराक होंगे, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको फोकस आउट करना है। एक्वायर्ड ट्रेड्स नेवर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। सेकेंड कैरेक्टर्स क्या लिखा है, इनहेरिटेड ट्रेड्स, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, द ट्रेड्स दैट passed from parents to their offspring, traits that pass from parents to their offspring called inherited traits, ठीक है। एक बार और यहाँ पे रिवाइज कर दे रहे हैं, ट्रेड्स दैट पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना है। इनहेरिटेड ट्रेड्स के एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बॉडी की हाइट, ये इनहेरिटेड ट्रेड्स है, ठीक है। हेयर टेक्सचर, TEXTUR, हेयर टेक्सचर। हेयर टेक्सचर क्या होता है भाई, किसी का बाल घुंघराला है, किसी का बाल सीधा है, घुंघराले बाल वाले का बच्चा घुंघराला बाल वाला होगा, ठीक है। इसके अलावा आई कलर, आई कलर ये भी जो है इनहेरिटेड ट्रेड्स है, ठीक है। बॉडी कलर, बॉडी कलर ये भी क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेड्स होता है, ठीक है। तो ये जितने भी ट्रेड्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, बॉडी हाइट, ठीक है, हेयर टेक्सचर, ठीक है, आई कलर, बॉडी कलर, ये सब क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड्स है। आई होप आपको एक्वायर्ड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको फिर से रिवाइज कर दूंगा, फिर से लिख दूंगा। अब आगे एक इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इसमें एसोसिएट है, वाई, क्वेश्चन क्या दिया है, वाई आर ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। कह रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अपने लाइफ स्पेन में इंटेलिजेंस गेन करता है या कोई स्किल गेन करता है, सपोज दैट ये स्किल कौन सी गेन कर लिया, स्विमिंग की, ठीक है, ये स्विमिंग की स्किल गेन कर लिया, स्विमिंग करना जान रहा है, तो इसके मान लो कि दो बच्चे हुए और दोनों जो है स्विमिंग नहीं जान रहे हैं, ठीक है, दोनों स्विमिंग नहीं जान रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि स्विमिंग क्या था, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स था। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पास क्यों नहीं हुआ, तो लिखेंगे ट्रेड्स दैट एसोसिएट विद द जीन्स ऑफ पेरेंट्स कैन ओनली पास, while the traits that not associate with the genes of parents cannot pass. So the acquired traits लिखेंगे यहाँ पे छोटा सा टर्म दे करके, the acquired traits, the acquired traits do not correlate, do not correlate with the genes of
एन इंडिविजुअल। अब इसके आगे आप लोग ले लीजिएगा, acquired traits do not correlate with the genes of an individual, so it cannot pass from parents to the offspring। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मानो कि ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको एक्वायर्ड ट्रेड्स इनहेरिटेड ट्रेड्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 5 वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, इसका आंसर भी कॉपी में सब लोग लिख डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द ह्यूमन बीइंग हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स इन टर्म्स ऑफ कलर साइज लुक्स आर सेड टू बिलोंग द सेम स्पीसीज, वाई? जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि कोई इंसान है, ठीक है, एक जो है कलर में ऐसा दिख रहा है, तो दूसरा जो है कलर में ऐसा दिख रहा है, तीसरा कलर में ऐसा दिख रहा है, चौथा हो सकता है कि कलर में कुछ ऐसा दिखे। ठीक है, चारों के कलर पैटर्न्स जो है अलग अलग है, लेकिन चारों अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसी पे तो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन को एक बार जब ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। ह्यूमन बीइंग हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स, ये ह्यूमन बीइंग अलग अलग लग रहा है, लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स, दैट इज कलर साइज। यहाँ मैं कलर पे डिफरेंट किया हूँ, साइज पे नहीं। लुक आर सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, ये सेम स्पीसीज को जस्टिफाई स्टेटमेंट्स तो लिखेंगे कॉपी में, येस द स्टेटमेंट इज ट्रू, ह्यूमन बीइंग दैट लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स इन टर्म्स ऑफ कलर साइज और लुक दैट आर बिलोंग टू सेम स्पीसीज बिकॉज ऑफ हैविंग the similar kinds of chromosomes in them, because the similar number of chromosome, that is 46, they all bears 46 number of chromosomes, whether they are the red, whether they are blue, green or purple in color, in which if they are different in size, different in color, but if they all are human, then we can say that they possess the similar kinds of chromosomes. Keep in mind, and their genetic constituents, their genetical or genetic constituents are almost similar. Their genetic constituents almost similar, so we can say that human being if look like differently in different ways by means of size, by means of height or by means of weight, yet they all are same with respect of their chromosome number, with respect of their genetic constituents। ठीक है, यानी कि उनका क्रोमोसोम नंबर तो सबका सेम ही होगा ना, 46 ही होगा, इस वजह से सब के सब इंसान होंगे, लेकिन ये जीन की वजह से, ठीक है, इनके जीन की वजह से, डोमिनेंट और रिसेसिव की वजह से ये सब अलग अलग हो गया, किसी का हाइट बड़ा हो गया, किसी का हाइट छोटा हो गया। तो आप इसको लिख डालेंगे कॉपी में जो मैंने बोला है, और इसको बैक करके लिखेंगे ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, मैं जब भी बोला उसको आप इसका आंसर लिख डालेंगे। अगर इसमें डाउट है तो आप प्रीवियस आप जो है लाइव क्लास में इसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आर इनहेरिटेड एंड द वन दैट आर एक्वायर्ड ह्यूमन, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ऊपर मैंने बता दिया है, अब इनहेरिटेड कैरेक्टर्स का एक एग्जाम्पल आपको देना है। ऊपर मैंने बताया, अभी दोबारा से लिख लीजिए कॉपी में, बॉडी हाइट इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, हेयर टेक्सचर, ठीक है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आई कलर, ये सब कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है। और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के एग्जांपल में लिख लीजिए कॉपी में, स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक द प्लेइंग स्किल, कुकिंग स्किल, स्विमिंग स्किल, इंटेलिजेंस, इसके अलावा साइज ऑफ बॉडी, हाइट ऑफ बॉडी क्या है? ये इनहेरिटेड कैरेक्टर, और साइज ऑफ बॉडी क्या है? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन with the help of flow chart. Explain the brief how sex of newborn genetically determined in human being. Which of the two parents, the mother or father, is responsible for determination of sex of a child? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया जिसको तुमको फोकस आउट करना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू क्या समझाएंगे कि कौन सा पेरेंट्स, ठीक है, मदर या फादर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट जो वीडियो पार्ट 1 पढ़ा था ना, पार्ट 1, उसको आप अच्छे से देखेंगे और इसको लिखेंगे द अमॉन्ग द फादर एंड मदर, द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग चार्ट। अब आप फ्लो चार्ट बना लेंगे अच्छे से, ठीक है, फ्लो चार्ट बना लेंगे और उसमें फ्लो चार्ट में आप मदर और फादर दिखा देंगे। उसके बाद 46 और 46 दोनों को लिख देंगे, लास्ट में मैंने बताया था, ठीक है, 46। उसके बाद ऑटोसोम प्लस एक्स वाई मेल के लिए और ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स फीमेल के लिए लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके गैमेटिक पेयर लिखेंगे 21 प्लस, आपको याद आ रहा होगा, बस याद के लिए मैं ये कर रहा हूँ, 21 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई कर देंगे। और इसके लिए सारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक जैसा आएगा, 22 प्लस एक्स टाइप आएगा। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा आई होप। पिछला वीडियो में एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया था, इस फ्लो चार्ट पे आप फोकस करेंगे और आंसर लिख डालेंगे। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और उसका आंसर हम बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर द प्रोजेनी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में क्या पूछ रहा है कि हाउ इक्वल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर among the parents ensure the progeny. Listen carefully. As we all know that human being and their progeny are diploid. Human being and the progeny are diploid, having 46 number of chromosomes which need to divide before sexual reproduction. The single human being, if divide their chromosome number, then it will be divided as 23 plus 23. This will be 23 for sperm and this will be 23 for ovum. Then the each of the chromosome number, whether from single sets of male and single sets of female, further restored to form the 46 number of chromosomes in next baby. That is known as the equal genetic contribution. Equal means similar kinds of genetic contribution. What happen if the male parents contribute 23 number of chromosomes while female contributes nothing? Then what happen? Their life not possible after having 23 number of chromosomes in the body should have at least 46 number of chromosomes, which 23 comes from the male parents and 23 comes from the female parents. तो इसमें कुछ पॉइंट्स आउट लिखने हैं जिसको मैं लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे कॉपी में। as we know that human and other living being mostly diploid which perform meiosis before gamete formation. अब आगे लिखेंगे मियोसिस
separate the chromosome in gametes which latter restore in next generation during syngamy. Syngamy means fertilization. सो इतनी बातें लिखने के बाद आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा. एज वी नो दैट human and other living being mostly diploid which perform meiosis before gamete formation. Meiosis separate the chromosomes in gametes which later restore in next generation during syngamy. Keep in mind, इसके बाद आके आपको ये वाला डायग्राम बना लेने हैं. एक मेल पेरेंट्स हो जाएगा और दूसरा फीमेल पेरेंट्स हो जाएगा. हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स. बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन it formed 23 number of chromosomes in each of the gametes, and similarly the female also form the 23 number of chromosomes in each gametes. Then the 23 number of chromosomes from male and 23 number of chromosomes from female restore to form 46 number of chromosomes in baby. What happen if equal genetic contribution not performed by the male and female, that is it never release the any 23 number of chromosomes, या अनइक्वल ये 46 रिलीज कर दे तो क्या होगा? आगे के जनरेशन में 46 रिलीज करने पे आगे के जनरेशन में क्या हो जाएगा? आगे के जनरेशन में 68 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे अगर ये 46 रिलीज कर रहा है इसके साथ तो आगे कितना हो जाएगा? 68 नंबर ऑफ क्रोमोजोम, 69 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स. तो ये इंसान नहीं बन पाएगा. ठीक है, अगर ये 23 रीजनरेट नहीं कर रहा है तो ये 23 अकेले स्पर्म नहीं कुछ कर सकता, इंसान नहीं बना सकता. ठीक है, तो हम ये लिखेंगे एज वी नो दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बेबी एंड द बेबी इफ लुक लाइक सिमिलर टू द ह्यूमन बीइंग देयर इज नीड ऑफ एटलीस्ट 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन नेक्स्ट जनरेशन. दैट्स वाई equal genetic contribution is necessary from male and female parents, and this can be explained as the given flow chart. ये फ्लो चार्ट आप अच्छे से बना लेंगे, यहाँ पे बेबी को स्टोर करके दिखा देंगे. अप टू क्वेश्चन नंबर 9 हमने इसमें सॉल्व कर लिया है. इसमें 5 to 9 हमने सॉल्व किया है, लास्ट में 1 to 4 हमने सॉल्व किया था. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड आपको सॉल्व कर दें. थैंक यू.